ये है रेड सैंड बोआ, भारत में पाया जाने वाला एक शांत बिना जहर वाला सांप। इसे भारतीय वन्य जीव कानूनों के तहत उच्चतम संरक्षण का दर्जा प्राप्त है, जो इसे बाघ के समान सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बावजूद रेड सैंड बोआ के बारे में कई पुराने और विचित्र किस्से फैले हैं, जिनके कारण भारत में इसका अवैध व्यापार बहुत ज्यादा है। इन मिथकों और गलत धारणाओं के बारे में समझने के लिए हमने शोधकर्ताओं, संरक्षणवादियों, वन विभाग के अधिकारियों और अवैध व्यापार से जुड़े लोगों से बात की। रेड सैंड बोआ एक मोटा, लाल और भूरे रंग का सांप है जो मिट्टी और रेत में सुरंग बनाने में माहिर है। रात में निकलने वाला यह जीव चूहों और छिपकलियों का शिकार करने के लिए अपने स्थान के पास आने का इंतजार करता है। यह सांप भारत में शुष्क, रेतीले और पथरीले इलाकों में अक्सर खेतों के पास पाया जाता है। If we talk about Delhi NCR, the most dominant kind of habitat we have is either river Yamuna floodplains or we have this proper Aravali scrubland. They occupy this kind of habitat because this is more like a scrubland, sandy area, and the sand boa basically prefer this kind of grassland where there is some loose sands. It prefers that sandy habitats and keeps on burrowing. रेत को पसंद करने वाला यह सांप अपनी अनोखी पूंछ के कारण अलग दिखता है। इसकी मोटी और कुंद पूंछ इसके सिर जैसी दिखती है। यही कारण है कि इसे दो मुआ कहा जाता है। This is a kind of a defense mechanism. Whenever they sense any danger, they coil themselves into a ball and they place their tail over their body because most of the time जो भी bird इस पे attack करते हैं, जो भी predator इस पे attack करते हैं, वो tails रहती है। And sometimes this is also a strategy to hunt. इसके दो मुंह होते नहीं हैं obviously. रेड सैंड बोआ की अनोखी बनावट और दो मुआ टैग ने अंधविश्वासों को जन्म दिया है। We don't know about snake. That is why they are so much prevalent, like these kind of myths. निर्मल कुलकर्णी एक सरीसृप विशेषज्ञ हैं और 2023 में रेड सैंड बोआ के व्यापार पर एक रिपोर्ट के सह-लेखक हैं। This two-head superstition has not done good for the snake at all. There are some which also believe that this snake has the ability of choosing on which side to go on every single day. The trade name for this snake also is called double engine. But besides this, there are a whole lot of other superstitions because of which this snake actually started going into trade. One of the important ones is that this snake can lead people to hidden treasures, or the fact that if you keep this snake in your house, you will actually suddenly become rich. There's another superstition of the snake actually attracting a lot of wealth by the weight of the snake. The heavier the snake, the more stronger its pull of attracting treasures or wealth, and that's really turned into a really bad aspect for the snake because we've had instances of people making the snake swallow larger slabs or tubes or balls of lead, which make the snake heavy. ये जो काला जादू होता है सिर्फ दो मुआ से होता है। एक तो काला जादू होता है तो वजन के हिसाब से होता है, वजन वेट। तो जैसे 4 किलो से ऊपर होना चाहिए, 4 किलो से कम हुआ तो वो नहीं चलेगा। मान ले कोई तरकीश कर रहता है ना, इसकी बिजनेस करता है तो इसका वजन बढ़ाया जाता है। वैसे कहीं इंजेक्शन लगा दिया या कुछ और खुलवा दिया उसको या कुछ और उसके अंदर डाल दिया तो वजन बढ़ाया जाता है। उस चीज से उस सांप को नुकसान पहुंच जाता है, तो उसकी जान भी जा सकती है, चली भी जाती है। Every time that we've actually seen or seizures of the red sand boa, they've always been live individuals. We've also found
individuals which have been malnourished, we know that they've been kept for a long time, not fed properly. This very nature of the snake actually, being easy to handle, easy to take care, easy to transport from one place to another is the reason why this has remained a lot in as a trend. लोगों के बीच में जो अफवाहें फैली हुई हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं, सच्चाई कोई नहीं है। ना ही इसका मेडिसिनल वैल्यू है, ना ही ये कोई तांत्रिक क्रिया में यूज़ होता है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जैसे 5-6 लोगों का गैंग है, वही परचेजर हैं, वही सेलर हैं, वही तांत्रिक हैं, वही सब कुछ है। तो उनका डीलर फिर बीच में जो डीलर होता है वो फिर उनसे आपस में मुलाकात करवाता है। फिर एक बायर लेके आते हैं, उसी गैंग का आदमी होता है वो। बस एक आदमी फंस जाए, कोई 5-7-10 लाख जितने भी पैसे लगा सकता है, ये गेम चलता रहता है। तो जब उनका काम निकल जाता है, किसी थर्ड पर्सन को जब वो फंसा लेते हैं, उनका काम निकल जाता है, वो गायब हो जाते हैं एकदम से। वो फिर पिक्चर से एकदम से ही गायब हो जाते हैं। There's a lot of spotlight put on the price of this snake. They've actually given a price tag or a value to the snake which goes in lakhs and crores of rupees actually, and that unfortunately, instead of basically highlighting on how the people were caught, highlights the cost and gives it a price tag, because of which more and more people, rather the younger generation, a certain section of people, youth from villages, from these people who really aspire to do bigger things with quick money, actually get into this aspect of finding these snakes and fall into this trap, and that is a cause of worry. बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कीमत, जादुई शक्तियों और औषधीय गुणों के अंधविश्वास से भरे दावे इस सांप के व्यापार को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारण हैं। ये कारण इसकी घटती आबादी के लिए जिम्मेदार है। आज भी गलत जानकारी और अंधविश्वास जारी है। एक हालिया मिथक ये है कि सांप में एक दुर्लभ तत्व इरिडियम पाया जाता है। The iridium thing is a new one, basically been seen in the last 5 years. It has suddenly come up, and mostly during the time, during or after COVID, that this thing has come up. Before that, it was always, the entire snake that was being used. The snakes were never opened up. क्योंकि ये नेटों पे भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, हर चीज़ के अंदर चल रहा है। जो भी कहीं भी देख लो, नेट पे देख लो, कुछ मंगवा के देख लो, तो 2 मुँह है सांप आगे आएगा। वन्यजीव व्यापार ऑनलाइन और चैट प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से बड़े पैमाने पर चल रहा है। अधिकारियों के लिए इस ऑनलाइन क्षेत्र की निगरानी और इसे नियंत्रित करना एक चुनौती है। दरअसल हमारे शोध के दौरान हमें एक यूट्यूब चैनल मिला जिसने इस सांप का विज्ञापन किया था। तो उसका कैसे डीलिंग होगा? मैडम पहले नहीं, आप माल देखो, माल ओके है तब मेरे को पेमेंट दो मैडम, लेकिन महाराष्ट्र आना पड़ेगा, धुलिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, लेकिन फिर उसको हम लेके कैसे आएंगे दिल्ली? तो आप 4 व्हीलर लेके आ जाओ, ट्रेन से लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन की वजह से गाड़ी कहीं भी चेक होती है, कहीं भी ये खड़ा कर देते हैं लोग जी, दूसरे राज्य में, ये राज्य वो राज्य, क्योंकि इलेक्शन के बाद में कोई हाथ भी नहीं देगा आपको। और फिर मैं दिल्ली के साइड कैसे वो कैसे जिंदा कैसे रहेगा इतने टाइम तक? कैसे होगा? वो बंद रहेगा? मैडम वो तो ज्यादा करके मट्टी में रहता है, 2-2 महीना 3-3 महीना रहता है, वो मट्टी खाता है। और आप बैग में आपको मट्टी डाल देंगे, वो मट्टी के अंदर उसको बैग में छोड़ देंगे। उसको तुम 1 महीना भी रखोगे, 1 महीना भी खाना नहीं दोगे, तो भी उसको कुछ नहीं होगा। रेड सैंड बोआ मिट्टी नहीं खाते। व्यापारी और मैंने एक दूसरे के नाम नहीं पूछे और न ही इसके बाद कोई और फोन कॉल की। आप बिंदास लेके जाओ। अच्छा, और अगर उसको तो कुछ लेडीज, आप तो लेडीज है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं आपको, कोई रोकेगा भी नहीं गाड़ी को। जी जी जी, तो मतलब वो बैग में रखे? तो आते हैं वैसे तो मैडम, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर से भी लोग आए थे, लेके गए। अच्छा, तो आपके उनको भी तो कोई दिक्कत नहीं आया, सिर्फ लेने वाले लोग आए।
लोग तो क्या बोलते हैं, हाँ भाई 4.5 kg का है, काटा कर लेते हैं, लेके चले जाते हैं। हमको तो कोई बोलता नहीं है इसका क्या चलता है, क्या होता है, क्या काम में आता है, ये तो हमको कुछ पता नहीं है मैडम। दुर्भाग्य से हमें कुछ अन्य YouTube चैनल भी मिले जिससे पता चलता है कि डिजिटल माध्यम से यह व्यापार धड़ल्ले से हो रहा है। निर्मल द्वारा तैयार 2023 की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की रिपोर्ट में जनवरी 2016 से दिसंबर 2021 के बीच 18 से अधिक राज्यों से रेड सैंड बोआ के अवैध व्यापार के 172 मीडिया रिपोर्ट दर्ज किए गए। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। We always keep saying this, that these seizures were high because of the fact that probably the enforcement was better. The intelligence network there has been really strong. मेरे टेन्योर में जैसे 4 से 5 केस हुए हैं रेड सैंड बोआ ट्रैफिकिंग के, और उनमें ये है कि एक स्टेट के आदमी इन्वॉल्व नहीं हैं और अलग अलग स्टेट के आदमी इन्वॉल्व हैं, और ये नहीं है कि ये कम्युनिटी बेस्ड है कि कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी कर रही है इसको, सभी कम्युनिटीज़ के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये नहीं है कि इसमें अनपढ़ लोग इन्वॉल्व हैं, ये तो नहीं है कि अनपढ़ लोग ही अंधविश्वास में पड़ते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही मिलते हैं हमें, और वेल इस्टेब्लिश्ड लोग जो हैं जिसके पास ठीक ठाक पैसा है वो लोग इसमें इन्वॉल्व मिलते हैं। We have been saying this very clearly that we cannot basically blame or even remotely think that this is being done just by this or by any of the snake handling communities or traditional communities who've been associated with snakes in any way. My major concern even now is the size of the snakes. Every time that we are looking, the size of the snake is a big snake. Mostly it's a big female. A lot of times they are really healthy snakes, and these individuals are basically targeted, collected, kept properly, and then sold. देखिए स्पीशीज़ में इम्पैक्ट तो आ रहा है। पहले जो सैंड बोआ जो है आसानी से दिख जाता था, कहीं भी अगर हम कच्चे रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं खेत में जा रहे हैं तो रास्ते में दिख जाता था वो, अभी वो नहीं दिख रहा है। I rescued this sand boa from a farm house अभी कुछ 4 दिन पहले। 2 दिन तक मैंने इसको ऑब्जर्वेशन में रखा, and now this is fit for release into the wild, and this is the perfect habitat for the release of the snake. रेड सैंड बोआ अवैध व्यापार और जंगली जानवरों को पालतू जानवर के रूप में रखने की बढ़ती मांग के कारण जोखिम में है, लेकिन एक और खतरा भी मंडरा रहा है। दिल्ली एनसीआर में जो फ्लड प्लेन्स हैं वो ऑलरेडी बहुत पहले से ही कम हैं, एंड जितने भी फ्लड प्लेन्स वाले एरिया हैं आइदर दे आर ऑक्यूपाइड एज अ फार्म लैंड, एंड पीपल आर डूइंग गुड अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड अभी वो जो हैबिटेट जो हुआ करते थे वो बचे ही नहीं हैं। When I started my field work, so this snake was very common, and like what I have seen now, we are not getting sand boas in the wild.